So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, are we live? Okay, I guess we are facing some error here. कुछ गड़बड़ हो रही है. Are we live? Are we connected and live? So there is some problem I guess. Okay, sir guys, is the Sunday mag of the Hindu important for exam purpose. Okay. So are we live now? Good morning everyone, are we live? Rohit Sharma session has started. So good morning everyone. Good morning. Asta, Jwala, Bhavna, Dhanraj, Pamal. Okay, sir, what is the due diligence and safety harbor provision ultimate? Neha, Varsha, Priyanka, Mohit, Ajay, Dheeraj, Nasreen, Bhavna, Anu, Abhinav, Anu, okay, Ankita, Vanchika. So, Mahima, UPSC with Rohit Singh. It's me, Priya. Okay, Diksha. Good morning, everyone. Okay, Dinesh, good morning, everyone. So Yashwini, Sasyakal, Mohit, good morning, Jwala, good morning. Okay, so here we are connected and live, and I'm extremely sorry for the delay because of the technical issues. Okay, I was not able to start the session. Somehow the live link was not working. Okay, so these were the minor issues. So let me upload the PDF. So you have to give me just 1 minute. Okay, I'll upload the PDF and then we will be starting up this particular session. Okay, so all of you are preparing for your 2021 or 2022. आप कौन से साल में एग्जाम में अपीयर होंगे? So you can share it with us. Okay, and I guess it's good that people are joining this session. So share it with your friends also. Let everyone should benefit out of it. If we are doing something good, okay, it should be shared with others. सबके साथ जो है share करना चाहिए. So here we are. The PDF has been uploaded in the group. Okay, so you can download the PDF from our group Raj Malhotra's IAS immediately. Okay, go there and you can download the PDF. So PDF for today's session can be downloaded from there, and here we are about to start the session. Okay, let's see. Okay, so PDF and all task has been done. Okay, 2021 HCS, 2022, 2021. Okay, means we have a variety. We have a variety, decent variety. Priyanka, Anil, good morning. Okay, Meghraj, good morning. चलिए start करते हैं आज का session. Okay, let's see what exactly is there for us. आज के अखबार में क्या है? Now government puts off decision on tax and relief for COVID-19 supplies. Okay, now states were demanding that some relief should be given, at least some GST. Okay, some GST relief should be given, and they were demanding that they should completely waive off the GST. Now you need to understand what government is saying. Government is saying that they are not collecting GST, means they have already reduced the percentage. Okay, so presently 5% GST is being charged on your vaccine and 12% on the COVID related accessories. Okay, COVID related accessories, they are charging 12%. This is what government is saying. So why government is pointing out this thing? So according to the finance minister, what she has said that if we reduce the tax, okay, if we reduce the tax, it is not going to have that much benefit. Okay, if we reduce the tax, it is not going to have that much benefit. Okay, why this is so? Because at the end of the day, if you see, citizen of this country, they are not paying for it. Paying in the sense, state governments are providing the COVID vaccine, center is providing the COVID vaccine. Okay, so state 25%, 50% of the vaccine which is being produced is already being procured by state and the central government. So you are left with only 25%, which is for the private sector. Okay, so that's why this is what they are saying, that there is no benefit in it. कुछ खास benefit होने वाला नहीं है. Okay, so that's why there is no point on reducing the GST tax, because center is saying that 50% of doses are procured by us. Okay, why should we listen to you? It will make the whole process complex. There is no point there. Okay, this is what they are saying. Now we'll move ahead. Okay, COVID
deaths in Kolkata 4 times more. Now again and again I am telling you this particular point, that government is still hiding something. Okay, 4 to 5 times more deaths are reported, and here we have this particular thing, how it is going to have an impact. Okay, how it is going to have an impact. Now if you are observing this particular flow chart or this particular data, okay, diagram, so here data is at the core, at the center of everything that we are going to do. So your governance, your scheme implementation, okay, your governance, your scheme implementation, it depends upon the correct data set. If data is not correct, definitely you will not be able to implement, you will not be able to frame a good scheme. Even the policy making will be impacted. Okay, policy making will be impacted. You will not be able to frame a good scheme. This you have to understand. Now when you are not framing a good scheme which is reflective of the ground reality, आपको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चलता, ओके, तो डेफिनेटली आपकी स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट भी नहीं होगी. जब आपकी स्कीम ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बनी ही नहीं है तो इंप्लीमेंट भी नहीं होगी. ठीक है ना. सो प्रेजेंटली अगर गवर्नमेंट डाटा हाइड कर रही है, करेक्ट डाटा नहीं आ रहा पब्लिक डोमेन में, तो आप जो है, आपको पता ही नहीं है कि एपिडेमिक कितना फैल चुका है. You have no idea about the depth of this problem. Okay, then how are you going to assure the required standards? आप required standards कैसे बनाओगे भी? हॉस्पिटल्स को कितने लेवल की प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाओगे, किस हिसाब से ये डिसाइड करोगे कि इतने हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज दीज मच रिसोर्सेज. हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड? हाउ आर यू गोइंग टू फ्रेम रूल्स? ओके, रूल्स कैसे बनाओगे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे बनाओगे? यू हैव नो आइडिया व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स. ओके, and how you are going to make a legal provision. फ्यूचर में if you want to make a legal provision, तो legal provision यहां पे कैसे बनेगा? There is no clarity over it. Okay, क्योंकि at the end of the day data is at the core. आपकी policies सब तभी correct होती हैं जब data correct होता है. Now you want transparency. Transparency really important. किस लिए? डेमोक्रेसी के अंदर. Okay, citizenship empowerment के अंदर. Now you are hiding the number of deaths. So what message it is sending? सोसाइटी के अंदर मैसेज ये जा रहा है कि कोरोना कुछ भी नहीं है. ओके, आइडियली पीपल शुड हैव बीन केयरफुल अबाउट कोरोना. और डर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है. ओके, आप ये मैसेज सेंड कर रहे हो कि कोरोना है ही नहीं, पीपल आर केयरलेस अबाउट इट. ये प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रही है. सो व्हेन यू आर हाइडिंग डेटा, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द डेथ्स. ओके, सो फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो, कुछ ना कुछ इसके ऊपर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को. सो कोलकाता का केस है, दिस इज द केस विद ईच एंड एवरी सिटी. हर सिटी की यही कहानी है. ओके, so now we'll move ahead. Covaxin output cycle may hit the center's deadline. Again and again, shortage of vaccine is there. Okay, the task is huge. You need to understand, you have added 600 million people. Okay, तो जो आपने 18 से 44 तक का किया है, तो 600 million doses, 600 million people you have added. Now at least if you are counting 2 dose, तो आपको 1200 million dose चाहिए. इन ऑल टोटल इंडिया के अंदर क्या रिक्वायर्ड है? इंडिया के अंदर पीपल आर सेइंग दैट 2 करोड़ डोजेस आर रिक्वायर्ड, 200 करोड़ डोजेस. ओके, इतने ज्यादा जो है डोजेस की जरूरत है. ये रियलिटी है हमारे यहाँ पे. और कहाँ पे कितने लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है आपको सब पता है. ठीक है ना. एंड इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव फॉर अनदर 3 months. ओके, 3 months में ये इंप्रूव भी नहीं होने वाला. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वायरस इज म्यूटेटिंग. ओके, वायरस आपका म्यूटेट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई यू नो अर्ली वैक्सीनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. पूरे देश के अंदर अर्ली वैक्सीनेशन आपको चाहिए. ओके, ये नहीं होगा तो हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे. दिस इज द मेजर पॉइंट हियर. दिस नीड टू बी कंसिडर्ड. सो देर आर मल्टीपल वेज विच आर बीइंग सजेस्टेड. वन इज दैट यू नो अलाउ ऑल द प्लेयर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. इंडिया के अंदर फ्री मार्केट कर दो. गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है. देन अनदर सजेशन इज दैट कंपल्सरी लाइसेंसिंग. ओके, कि गवर्नमेंट कंपल्सरीली जो ये पेटेंट है इसको रिमूव कर दे. अनदर पॉइंट इज दैट कोवैक्सीन द पेटेंट कैन बी शेयर्ड. ओके, इसका पेटेंट जो है बाकी सप्लायर्स के साथ
शेयर किया जाना चाहिए, so that you can increase the production. Immediately आप production increase कर दो. Now what is special about Covaxin? Covaxin के अंदर इतना special क्या है? Because ICMR is a stakeholder here. Okay, ICMR which is a सरकारी entity, government entity is a stakeholder here. तो ये अपना patent dilute कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है. ओके, सो हेल्प चिल्ड्रन ऑफर्ड बाय द कोविड-19. सुप्रीम कोर्ट इज ऑर्डरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक मेजर क्राइसिस हो सकता है. हाउ दिस इज अ मेजर क्राइसिस? हियर यू हैव टू लिंक विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ओके, तो अगर यहां पे जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं, ओके, दे आर डेड नाउ, तो उन केस में इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. ओके, अदरवाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है. ओके, नाउ इवन इफ यू हैव टू प्रमोट अडॉप्शन, अगर आपको अडॉप्शन प्रमोट करना भी है, सो दैट अडॉप्शन शुड ऑल्सो बी थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मल चैनल. जो फॉर्मल चैनल आपके पास अवेलेबल है, जो सरकारी सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, एज पर द रूल्स, जो प्रोसेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अडॉप्शन करना है. सो दरअसल हो क्या रहा है, सो सोशल मीडिया के ऊपर, ओके, पोस्ट आर बिन पुट कि भी ये बच्चा जो है पेरेंट्स पास्ड अवे, ओके, सो यहाँ पे इनको आप अडॉप्ट कर लो. नाउ सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन नॉट कैरी आउट द अडॉप्शन थिंग. ओके, वहां पे आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ फियर कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है ना, बच्चे खरीदे बेचे तो नहीं जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है. ओके, तो देयर इज अ प्रॉपर चैनल विच इज अवेलेबल. सो ऐसे बच्चों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. सो द टास्क शुड बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, दे शुड बी प्रोएक्टिव. जहां जहां पे भी उनको पता लग रहा है, वो वहां जाके उन बच्चों को मिलें. ओके, यहां से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू अप्रोच द राइट एजेंसी. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड कारा. ओके, कारा एजेंसी है विच लुक्स इनटू द अडॉप्शन. कारा जो है हमारे यहाँ पे एक एजेंसी है जो अडॉप्शन को लेके सारा चीज संभालती है. सो यू हैव टू अप्रोच देम. ओके, उनकी जो है प्रोएक्टिविटी यहाँ पे मेजरली हमें चाहिए, ठीक है ना. सो ममता स्किप्स द पीएम रिव्यू मीट ऑन यास. सो हियर वी आर गोइंग टू कवर फ्यू थिंग्स अबाउट द फेडरलिज्म. ओके, तो यहां पे फेडरलिज्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे. आई हैव प्रिपेयर्ड वन माइंड मैप फॉर यू. ओके, सो ममता स्किप्स द रिव्यू मीटिंग और यास. नाउ दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहां पे स्टेट एंड सेंटर बोथ शुड वर्क टुगेदर, यूनियन प्लस स्टेट. सो दोनों को साथ में आना जरूरी है, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद अ साइक्लोन. साइक्लोन के लिए आप साइक्लोन से लड़ रहे हो, यू हैव टू रिहेबिलिटेट पीपल. ओके, कंस्ट्रक्शन करनी है, दोबारा रिसोर्सेज अरेंज करने हैं. सो दिस इज द न्यू थिंग, ये सारी नई चीज है. देखो, अब यहां पे हम देखेंगे कि हाउ आर फेडरल स्ट्रक्चर. सी व्हाट इज द फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है? ओके, फेडरलिज्म मीन्स दैट स्टेट and your union, okay, state and union both are sharing responsibilities. Okay, both are sharing responsibilities and both are equal entity in their own way. Okay, both are sharing responsibilities and both are equal entities. This is the federalism, this is the idea of federalism, that there is a tier structure, union is there, state is there, they have their own responsibility, they have their own task, and collectively they are providing the governance. Okay, this is the idea. Now ideally scheme should have been like this कि हमारे यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता, but there are some provisions which are there in our constitution, okay, which pose a challenge to Indian federalism. कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही ऐसे प्रोविजन हैं which are posing a challenge to your constitution, to your federalism. आपके फेडरलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं. Now these are important things, we should know about them. Okay, so in India it is said that Indian constitution, okay, Indian constitution, it has a unitary biasness. Okay, unitary biasness. Biasness means it is biased towards union. Okay, it is biased towards union.
tilted towards union, that union is more strong, union is stronger. Okay, union is stronger. This is the point that we have. Now how this is so, ऐसा क्यों आपको नजर आ रहा है? So that point is there. So you have a seventh schedule, okay, so which provides for sharing of power. Then you have union list, state list, concurrent list. However, the parliament can legislate upon the subject of the state list. स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, पार्लियामेंट उनके ऊपर भी कानून बना सकता है. इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड इन राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी, अगर 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है राज्यसभा में, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है. और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी किसी यूनियन लिस्ट पे कानून नहीं बना सकता. देन ब्रॉडर स्कोप ऑफ यूनियन पावर. So you have this particular provision under Article 249 and 250. In case of any inconsistency between the laws made by the parliament and the state, okay, the law made by the parliament shall prevail. अब कानून अगर बनते हैं तो पार्लियामेंट का कानून वो प्रिवेल करेगा. Then territorial reorganization. So parliament by law कैन एलिमिनेट एनी स्टेट. किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकते हैं, किसी भी स्टेट का एग्जिस्टेंस बदल सकते हैं. ओके, अपनी मर्जी से. पार्लियामेंट के पास ये पावर है. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग दैट आप फेडरलिज्म को प्रमोट करते हो, तो एटलीस्ट राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए. आपने यूपी की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन कम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन और भी कम है. ओके, ये प्रॉब्लम है यहां पे. देन यू हैव ऑल इंडिया सर्विसेज. आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हो, बट यू विल बी वर्किंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट. आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होगे. ओके, यू विल बी वर्किंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज द पॉइंट हियर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट. Then next point is that single citizenship. Now we are Indians, okay, we have a single citizenship provision, and in United States they have a dual citizenship. Okay, dual citizenship कैसी होती है? You have a national citizenship as well as your state citizenship. दो citizenship होती हैं यूएस के अंदर. So presently we don't have such system in India. इंडिया के अंदर ऐसी सिस्टम नहीं है, ठीक है ना? So ये आपको समझना है. Then role of governor. We know that the post of governor is misused. Okay, it is misused. Governor has some discretionary power. So this discretionary power is misused by the center. Okay, and we know how the politics is being played by the governor. We have seen it many times. बहुत बार देखा गया है. Emergency provisions. Now they can impose president rule under Article 356. Okay. These are the provisions which shows that union is really powerful and states are not that powerful. This is the reality. Okay, this is the reality. Now if there will be a question, the question will be asked upon this particular point. Okay, GS paper 2, GS paper 2 mains, the question can be asked. Okay, so you should be knowing about all these points. ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? सो विल मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं. सो डेल टू स्टार्ट अनलॉक प्रोसेस फ्रॉम May 31. इट इज गुड दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमी को आपको बचाना है, ठीक है ना? इट इज रियली रियली क्रिटिकल बिकॉज लाइवलीहुड इज रियली इंपैक्टेड. इनकम्स आर नॉट पिकिंग अप. लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम डाउन है. एंग्जाइटी इज देयर. ओके, अनसर्टेन फ्यूचर, एंग्जाइटी इज देयर. व्हाट आर वी सपोज टू डू? दिस इज द क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन सबसे पहले जो है लोगों के जहन में आ रहा है. सो ये चीज आपको समझनी है. तो दिल्ली स्टार्ट कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग. ओके, अदर सिटीज विल ऑल्सो बाउंस बैक. नाउ विल मूव अहेड, आगे चलते हैं. ओके, सो हियर देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. सो विल डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पोर्शन. सीधा एडिटोरियल पोर्शन की तरफ जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं आ रही थी. ओके, सो चलिए. नाउ डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल. नाउ दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग विच इज गोइंग ऑन इन नेपाल. सो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज देयर. ओके, so here this article, this editorial is pointing out one thing. Okay, this article, this editorial is pointing out one thing, that what exactly is going on in Nepal and what's India's role in it.
इंडिया क्या कर रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, ओके, इन योर जियोपॉलिटिक्स you have to talk with all stakeholders, okay, talk with all stakeholders. So presently, okay, whatever situation is going on in Nepal, we have to talk with the government also as well as the opposition also, okay. But here this article is pointing out some different, concepts, okay. It is saying that presently there is political crisis going on in Nepal, and it is appearing that the prime minister is not following the constitution, okay. कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द प्रेसिडेंट, दे आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इज गोइंग ऑन, and there is a power struggle between the political parties and leaders in Nepal, okay, and dangerous game is being played by the national and international forces. Now this is what is happening. China is also trying to influence, India is also trying to influence, okay. ये सारी चीजें चल रही हैं. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है ना. ये सारी समस्या है, ओके. सो you need to understand one point. Now the perception is different. Perception क्या जा रहा है? Perception in the minds of Nepalese population is that India is backing the autocratic and unconstitutional regime. So presently Nepal's president and the prime minister Mr. Oli, they are playing a game, okay, which is not constitutional. So the perception in the Nepali people is that India is behind this, that India is creating this trouble. This is the perception that they have. ये perception उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना. So ये बात यहाँ चल रही है. Now statements made by your external affair minister, they are saying that they are not. We have said that political development in Nepal are country's internal matter. कि इंडिया का कोई हाथ नहीं है. India is not interfering. Okay, this is what Indian foreign minister has said this. And we have to stick to the Indian statement of Indian foreign minister only, okay. No doubt they are writing this thing in this editorial, so this editorial is also a point of view, okay. ये भी एक point of view है. You need to understand this point. So whatever government is saying, we have to toe that line only. उसी line को हमें आगे बढ़ाना है. Now there are issues which are still pending, like India-Nepal boundary dispute, okay. So some of the experts, they are saying that since Nepal passed a constitutional amendment, नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, दैट्स वाई इंडिया इज नाउ सपोर्टिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि दे वांट टू डन अवे विद द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटाना चाहते हैं. नाउ दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. व्हाई? बिकॉज नेपाल बाउंड्री, इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ओके. Now you need to understand, this editorial is saying that this particular dispute can be resolved by political dialogue. बातचीत से आप इसको हटा सकते हो. The trade-off can be made between the developmental aspiration of Nepal and the strategic concern of India. इंडिया के जो कंसर्न्स है और नेपाल की डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, उनको आप बात कर सकते हो कि नेपाल हमारी स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को एड्रेस करे और हम नेपाल में डेवलपमेंट करेंगे, ओके. ये बातचीत हो सकती है, ठीक है ना. ये बातचीत हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इंडिया शुड नॉट सपोर्ट द ऑटोक्रेटिक रेजिम, कि किसी भी हालत में इंडिया को इस ऑटोक्रेटिक रेजिम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. ये पॉइंट इन्होंने बोला है, ओके. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. इन योर आंसर यू कैन नॉट राइट दिस, ओके. यू कैन नॉट राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Even if you want to write, you have to write it in a smart way by saying that according to, okay, according to Nepalese media, according to Nepalese media, okay, according to the Nepalese media, there is perception that India is supporting the autocratic regime, okay. This point you have to write. तो आपकी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू द Nepalese मीडिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. तो ये बात आपको समझना है. सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. इंडिया का कोई हाथ नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है, हमें कुछ नहीं लेना देना, ओके. सो ह्यूमैनिटी मैटर्स, capitalism needs an upgrade. This is what they are saying, okay. So you need to understand capitalism, okay. Capitalism is guided by the profit making, okay.
This is the funda here. Capitalism is guided by the profit making, and your public sector, government, sarkari system, public sector, they are guided by the, you know, social values, means they have to serve the society. Okay, they have to serve the society. This is the difference that we have. Now during the present time, okay, COVID is going on, and this capitalism, it has failed. Okay, it has failed in the sense there are issues like affordability. Okay, affordability. Now that's the major problem. Okay, people are not going to afford what hospitals are charging. ये समस्या यहाँ चल रही है, and this is somehow the system has failed. यही चीज यहाँ पे आ रही है. Now we'll look into this. Okay, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे. अब यहाँ चीज इन्होंने बोली है that COVID vaccine crisis, okay, it is an opportune time when companies must rethink the purpose behind their existence, that why these companies are existing. You are carrying out a private entity, आप private business कर रहे हो. Okay, you are carrying out a private business for profit making or for providing employment. Okay, for profit making or for providing employment. Which is your mantra? आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो या आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो? इफ यू आर गाइडेड बाय द प्रॉफिट मेकिंग थिंग, यू हैव अ नैरो आउटलुक. आपका आउटलुक नैरो है. बट इफ यू आर गाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, दिस इज द ब्रॉड आउटलुक. ये ब्रॉड आउटलुक है. एंड यू शुड वर्क फॉर द लार्जर कॉज. आपको लार्जर कॉज के लिए काम करना चाहिए. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. नाउ हियर आई वुड लाइक टू कोट नारायण मूर्ति. ओके, so Infosys, you must be knowing about it. Okay, so Infosys founder Narayan Murthy, Mr. Narayan Murthy, he told one thing. Okay, so you can directly quote it in the answer. Okay, especially in your GS paper 4. GS paper 4, the question can be raised that whether, okay, capitalism is good or not. Whether capitalism is good or not. Okay, so this question can be raised. Now N. Narayan Murthy, okay, he pointed out one thing. He said that there should be compassionate, okay, there should be compassionate capitalism. There should be compassionate capitalism. Means you should be guided by the compassionate principle. आपको कंपैशन शो करना है. सो ये आप अपने आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हो. यू कैन डायरेक्टली राइट इट इन योर आंसर. ओके, ये आप अपने आंसर में सीधा सीधा लिख सकते हो. ठीक है ना. ऑटोक्रेटिक रेजिम का मतलब अपने मन की करने वाले. ठीक है ना. नॉट गोइंग बाय द रूल ऑफ लॉ. ओके, नाउ COVID-19 वैक्सीन क्राइसिस इज अनदर इंस्टेंस. इट इज शोइंग हाउ the principle of humanity is being undermined by the principle of capitalism. Why so? Why they are not sharing their patent information? Patent information आप share क्यों नहीं कर रहे हो? Why they are so adamant about the profit making? Okay, सिर्फ profit making के ऊपर क्यों लगे हुए हैं वो? क्यों वो अपनी पेटेंट को शेयर नहीं कर सकते? Don't you think if they are sharing the patent, okay, तो बहुत बड़े स्केल पे हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे. वी विल बी एबल टू फाइट विद दिस कोरोना एट अ लार्जर स्केल. ओके, इफ दे आर गोइंग टू शेयर देयर पेटेंट, बट दे आर नॉट डूइंग इट. ओके, they are not doing it. Now they are insisting on protecting the patent and they want to make profit. Okay, so profit making on dead bodies. Okay, can you afford? You are not sharing your patent and you are allowing people to die. Is it the right thing? Is it the right thing? So if the price they charge are beyond the reach of poor people, they are not morally compelled to serve them. Okay, you need to understand this thing. If people are not able to afford the vaccine or the treatment that private hospitals are charging, what's the point of having it? There is no moral angle to your practice. You are working for a profit and that is somehow looking to be immoral because people are dying here. So government must step in and buy from private producers. Okay, so there can be one solution, that either the government should step in and they will procure the products from private producer and subsidize sale to the poor people. This is one way. Okay, so what they are saying, that government procurement. Okay, either this is the solution. Okay,
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकारी प्रोक्योरमेंट हो, देन प्रोक्योर इट फ्रॉम द प्राइवेट, प्राइवेट से प्रोक्योर करें गवर्नमेंट एंड देन गिव इट टू द पीपल एट अ सब्सिडाइज रेट, ओके, सब्सिडाइज रेट, ठीक है ना। सो ये एक तरीका है। बट यू टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट रिक्वायर्स रेवेन्यू, ओके, government requires revenue and revenue will come from private entities, your business, जब बिजनेस होगा तभी रेवेन्यू आएगा ना, ओके, प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट इकोनॉमी, वहां से बिजनेस होगा, रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट विल हैव मनी, दे विल प्लेस एन ऑर्डर विद प्राइवेट प्लेयर, ओके, दिस इज द एंगल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एंगल चल रहा है। नाउ फॉर अरेंजिंग रेवेन्यू दे हैव टू टैक्स, ओके, they have to tax. Now if private players are thinking that government should procure from them, at the end of the day private players might have to pay more tax. सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, जनता को ही टैक्स देना पड़ेगा ना। टैक्स बर्डन विल बी आइदर ऑन पीपल और ऑन प्राइवेट एंटिटीज। टैक्स अगर बढ़ेगा तो या तो वो लोगों पे बढ़ेगा या प्राइवेट एंटिटी पे बढ़ेगा, तभी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है ना। सो दिस इज द पॉइंट हियर, this is the point here. Now government need revenue, taxes on private companies could be a significant source, okay. Now if private companies, they press government for lower taxes, okay, and they further want government to procure from them, okay, and they also want government to stay out of business. अगर वो ये चाहते हैं कि सरकार बिजनेस से बाहर रहे, बिकॉज इफ गवर्नमेंट विल डू बिजनेस देन प्राइवेट प्लेयर विल नॉट बी एबल टू compete, ओके, सरकार अगर बिजनेस करेगी तो प्राइवेट प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटी घट जाएगी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, मतलब हर कंडीशन में प्राइवेट प्लेयर की विक्ट्री नहीं हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टैक्सेस भी कम रहे, ओके, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस भी ना करे, मतलब आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्लोज डाउन कर दो, ओके, कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी ना आने दो और टैक्सेस भी ना बढ़ाओ और आप जो है लोगों को महंगा भी बेचो, ये तो प्राइवेट प्लेयर के साथ नहीं हो सकता ना। दिस इज नॉट वायबल, ओके, दिस इज नॉट वायबल एट ऑल। यू नीड टू अंडरस्टैंड, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंडियन गवर्नमेंट इज फेसिंग दिस क्राइसिस नाउ। आज की डेट में हम क्या करें, अगर हम टैक्सेस बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द टैक्स योर इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू पुश, आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए, बिकॉज प्राइवेट हेल्प इज नॉट अफोर्डेबल, ओके, वट एवर प्राइवेट इज चार्जिंग इट इज बियॉन्ड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ कॉमन मैन, आम जनता नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो गवर्नमेंट करे क्या। दिस इज द क्राइसिस दैट गवर्नमेंट इज फेसिंग, ओके, ना तो टैक्स बढ़ा सकती, ना प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चीजों को छोड़ सकती, और आपको पुअर के लिए भी काम करना है, ओके। नाउ business houses, what they do, they convert natural capital into the financial capital, okay, and this led to over exploitation. We know that how earth's resources are being exploited for profit making, okay, so यहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एंड ब्लाइंड प्रॉफिट मेकिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस, ओके, सो दैट्स व्हाई अब आपको एक चीज समझनी है, what was the reason of slavery? The blind capitalism was the reason of slavery, okay, you need to understand, there was slavery in America, US के अंदर slavery थी। what was the reason? because capitalist class they used to get cheap labor, अब वो cheap labor के नाम पे slavery भी उन्होंने की है, तो capitalism in a blind way is really dangerous, ये किसी के human rights का भी violation कर सकता है। and presently if you see, so the modern regime of intellectual property right, these private players, they are controlling these intellectual property rights, and this is somehow developing into a monopoly, वो लोग monopoly बनाते जा रहे हैं, okay, they are making somehow a monopoly, ये monopoly बनाते जा रहे हैं। now TRIPS is founded on the principle of product patent, okay, तो ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट इज फाउंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट। इंडिया हैव अ डिफरेंट अप्रोच, ओके, हमारे यहाँ पे प्रोसेस पेटेंट है। देखो प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वी हैव अ प्रोसेस पेटेंट थिंग, ओके, दैट हियर इज अ प्रोडक्ट ए, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स के अकॉर्डिंग
प्रोडक्ट पेटेंट होना चाहिए. ओके, प्रोडक्ट पेटेंट होना चाहिए. वी आर सेइंग दैट you start a process here, you start this is the path that you followed, this is the path that you follow, this is the process 1. okay, आपने ये प्रोडक्ट बनाया ये प्रोसेस 1 फॉलो करके. now the same product can be made by following process 2. प्रोसेस 2 से भी वो प्रोडक्ट बन सकता है इधर उधर घूम के. ठीक है ना. सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट पेटेंट, हमारे यहां पे प्रोसेस पेटेंट होती है इंडियन लॉ के अंडर. ये एंगल आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना, ये एंगल समझना पड़ेगा. हमारे यहां पे प्रोसेस पेटेंट होता है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता. ओके, तो बाकी जगहों पे प्रोडक्ट पेटेंट होता है. अदर कंट्रीज दे से दैट दे ब्लेम इंडिया दैट व्हाई आर यू नॉट गिविंग अस द प्रोडक्ट पेटेंट. ओके, सो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, तो हमारा लॉ थोड़ा डिफरेंट है. दिस इज द टाइम वी शुड यूज दिस. ओके, आज की डेट में हमें इसे यूज करना चाहिए. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई देयर आर वॉइसेस दैट गवर्नमेंट शुड अलाउ द जेनेरिक वर्जन ऑफ दीज वैक्सीन्स. इन वैक्सीन का जो जेनेरिक वर्जन आता है वो हमें अलाउ कर देना चाहिए. ओके, वो हमें अलाउ कर देना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है थोड़ा. ठीक है ना, बट हम ये कर नहीं सकते हैं. ओके, सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. पूरी दुनिया जैसे चल रही है आपको जो है वैसे चलना पड़ेगा. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट इज दैट हाउ दीज कैपिटलिस्ट दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू आवर सोशल मीडिया. ओके, टू मैनिपुलेट योर चॉइसेस. आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं. इफ यू आर ऑब्जर्विंग सोशल मीडिया पे आप एक बार कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो, सो इट विल रीअपियर. ओके, बार बार वो आपको सेंड करेगा दैट यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू बाय दिस. ये पॉइंट समझना जरूरी है. तो प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट को बचाना कि उस प्रोडक्ट के जैसा दूसरा कोई और नहीं बना पाएगा. ठीक है ना, ये पॉइंट, कोई उस प्रोडक्ट जैसा दूसरा नहीं बना पाएगा. ओके, तो मैंने मान लो ये कप बनाया है, तो ये कप जो है ओके ये मेरा प्रोडक्ट है. ठीक है ना. अब प्रोडक्ट पेटेंट के अंदर इस टाइप का कप कोई और नहीं बना पाएगा. इफ आई विल गिव द प्रोडक्ट पेटेंट नो वन कैन मेक दिस कप. इफ आई विल हैव द प्रोसेस पेटेंट others can also make this cup by using this different process. दूसरी प्रोसेस के थ्रू जो है आप इस कप को बना सकते हो. मैं चाहे हाथों से कप बनाता हूं, यू कैन यूज द मशीन. ओके, आई कैन यूज माई हैंड्स, यू कैन यूज द मशीन. यहां पे प्रोसेस इज डिफरेंट. ओके, बट इफ दिस कप इटसेल्फ इज पेटेंटेड, अगर यहां पे प्रोडक्ट पेटेंट दे दिया तो फिर आप मशीन या हाथों से दोनों से ही नहीं बना सकते. ओके, तो इंडिया के अंदर जो है प्रोसेस पेटेंट होता है, मतलब हम जो है कप बनाना अलाउ करते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ ह्यूमन वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना. ओके, समहाउ मनी ड्रिवन कैपिटलिस्ट दे हैव ड्रिफ्टेड टू फार फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज. ऐसा देखा गया है. ओके, इन यूएस देयर वाज स्लेवरी के अंडर भी देखा गया है हाउ ह्यूमन वैल्यूज वर अंडरमाइंड. ओके, and presently also if they are not ready to share their patent and they are not ready to help people, it is showing that they are undermining the human values. Okay, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है. तो जहां पे आप पॉल्यूशन करते हो, ओके, जहां पे आप एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सप्लॉयटेशन करते हो रिसोर्सेज की, वहां पे आपको समझ में आता है कि कैसे ह्यूमन वैल्यूज यहां पे अंडरमाइन हो रही हैं. ओके, कैसे ह्यूमन वैल्यूज अंडरमाइन हो रही हैं. So this is the point which you have to see here. ये जो है सारी डिबेट चल रही है. Let's move ahead. Okay, turning COVID-19 tide in Chennai. Now they are giving this Chennai case study how the problem is appearing in Chennai. So Chennai, this case study is not different. Okay, this case study is not different. There is shortage of beds. Okay, shortage of beds. This is the problem. Every other metropolitan city has faced this. Mumbai, Delhi and Chennai is not different. Okay, people using their contacts, beds की shortage, people using their contacts. Okay, अपने contacts को use करके beds arrange कराना. ठीक है ना. shortage of medicine,
medicine is also not available. Again, people using their contacts for medicine. Okay, so ये कहानी चल रही है, ठीक है ना, ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर देखना है, नाउ दिस शोज दैट अक्रॉस द कंट्री द प्रॉब्लम इज ह्यूज। अदरवाइज तमिलनाडु was known for good medical infrastructure. Okay, तमिलनाडु was known for good medical infrastructure, वहां पे बहुत अच्छा था, but there also it has been exposed. The pace at which the corona is spreading, the surge in the cases, that is huge, बहुत ज्यादा है वो सर्च। ओके, ये केस स्टडी इन्होंने बताई है। सो फैटेलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल देयर, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। सो जैसे बाकी जगहों पे हमने किया, वी हैव टू डू इट the same thing here. You have to improve the supplies. Okay, you have to improve the supplies, and district administration, the role is really critical. The role of local government is really critical here. Okay, local government का क्या role है, ये important है। So I guess monitoring should be done by the local government. How the preparation are done, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। मतलब दे शुड मेक श्योर, दे शुड मॉनिटर हाउ योर ब्यूरोक्रेसी इज फंक्शनिंग। ओके, ये चीज हम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सो here we don't have anything, you know, for important for our exam. Basically this news is going on. Okay, so corporate mindset driving the administrator's action, says this MP. Now the crisis like situation is appearing in Lakshadweep. Okay, so Lakshadweep के अंदर ये जो है crisis situation चल रही है। Now you need to understand the demographic profile of Lakshadweep. Okay, so literacy rate is really high. So Lakshadweep is not, you know, it has some special things in it. Okay, पढ़े लिखे लोग हैं, literacy rate is really high there. Okay, and presently the administrator, okay, who is handling this particular region, he has passed some arrangements, he has passed some law. Okay, उन्होंने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करवाए थे, लॉ नहीं पास किए, कुछ रूल्स जो है उन्होंने रिलीज किए। ओके, टू कैरी आउट द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इसके लिए इन्होंने काम किया। नाउ हाउ ही अंडरमाइंड वन क्रिटिकल थिंग, दैट इज ही डिडंट डिस्कस दैट प्रोजेक्ट विद योर ग्राम पंचायत। सो लक्षद्वीप के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ओके, दे वर नॉट कंसल्टेड, दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसलिए ये समस्या हुई है। ओके, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अपेयरिंग। नाउ यू टेल मी, अकॉर्डिंग टू योर 2011 सेंसस, ओके, so population is near about 60,000 population is there according to 2011। अगर प्रेजेंट देखेंगे तो 65,000 के अराउंड होगा। ओके, इतने छोटे स्केल पे आप काम कर रहे हो, एंड स्टिल यू आर अंडरमाइनिंग द लोकल गवर्नमेंट। दिस वाज द प्रॉब्लम हियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लेड टू डिस्ट्रस्ट, और कहीं पे डिस्ट्रस्ट की कमी आई है। ओके, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दिस इज डेवलपिंग इनटू अ क्राइसिस। ओके, ये एक क्राइसिस होता जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज बन रहा है। ओके, सो हमें जो है बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ चीजों को हैंडल करना चाहिए। व्हाई इट इज सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड लक्षद्वीप इज वेरी क्रिटिकल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मैरीटाइम सिक्योरिटी। आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो ये पॉइंट समझना जरूरी है आपको। सो when this particular island is so critical for you, you have to handle it in a proper way. Okay, आपको बहुत अच्छे से इसको हैंडल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। So we'll move ahead. Okay, आगे बढ़ते हैं। Scope of section 304B in dowry deaths widened by Supreme Court. Now Supreme Court is saying that they should liberally interpret the provision. Okay, थोड़ा liberally इसको interpret करना पड़ेगा। अब why this is there? Okay, so you need to understand, according to section 304B, to make out a case of dowry death, a woman should have died of burns or bodily injuries or otherwise than under normal circumstances within the 7 years of her marriage. Now you tell me one thing, क्या 8 साल के बाद, after 8 years, okay, क्या dowry related death नहीं हो सकती है? Okay, this is the logic, you think yourself.
they are writing that within 7 years if she is dying of all these things. Okay, now I am asking this question, after 7 years or after say 8 years, क्या डॉरी रिलेटेड डेथ नहीं हो सकती है? क्या जो इन लॉज हैं वो डॉरी नहीं डिमांड कर सकते आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज? ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर. ये एक मेजर प्रॉब्लम है एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस, डोंट गो इन अ लिटरल डेफिनेशन. ओके, बी मोर लिबरल, थोड़ा लिबरल हो जाओ, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से सोच समझ के इसको जो है लागू करो. नाउ डॉरी रिलेटेड डेथ्स अकाउंटेड फॉर 40 to 50% ऑफ होमिसाइड्स इन द कंट्री. आपके देश में जितनी भी डेथ्स होती हैं जैसे मर्डर टाइप चीजें, ओके, सो 40 to 50% डेथ्स आर स्टिल डॉरी रिलेटेड डेथ्स. ये जो है आपको समझना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. इट मींस दैट इट इज स्टिल प्रॉब्लमैटिक. ओके, सो इतने साल हो गए हमारे आजादी को, बट ये डाउरी जैसी चीजें अभी तक चल रही हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी शुड हैव सफर्ड क्रूएलिटी और हरासमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड इन लॉज. नाउ सून बिफोर हर डेथ, अब ये सून बिफोर हर डेथ लिखा हुआ है. योर लॉ इज मेंशनिंग दैट शी शुड बी harassed, she should have suffered cruelty. अब how are you going to prove whether she was harassed or she had suffered cruelty? Okay, immediate before the death. Now if the cruelty and harassment was carried out 1 month before the death, then you will not impose the dowry related case. तो उस केस में आप dowry related जो सेक्शन है वो इंपोज नहीं करोगे क्या? तो ये एब्सर्डिटी है. दिस इज द एब्सर्ड स्टेटमेंट्स विच आर प्रेजेंट, कि सून बिफोर द डेथ जो है क्रूएलिटी और हरासमेंट होना, ये भी एंगल होना चाहिए. नाउ दिस इज हाउ इट इज एब्सर्ड एंड दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट इटसेल्फ. कोर्ट ने ही ये पॉइंट आउट किया है, ओके, कि इस टाइप की एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ये चीज इन्होंने बोली है. ओके, सो विल मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं. So India seeks more studies on virus origin. Now this particular assembly is going on, okay, World Health Assembly, ठीक है ना, वहां पे इंडिया ने ये बात बोली है, okay, that more studies should be carried out, plus investigation should be carried out कि वायरस का ओरिजिन कहाँ पे था. ठीक है ना, वायरस का ओरिजिन कहाँ पे था, so that you can prepare for the future. Okay, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सको. Okay, see, you need to understand one important point here. Now this is the question that I am asking. Should we, okay, should we stop, this is the fundamental question, okay, should we stop such research, जो इस टाइप की रिसर्च चल रही है, okay, क्या हमें वो रोक देनी चाहिए? जो लेबोरेटरी में जो वायरस इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, should we stop that? Because other virus can also come out, फ्यूचर के अंदर ये भी वायरस आगे आ सकते हैं. okay, now this is what I am asking, should we stop the research? क्या हमें रिसर्च बंद कर देनी चाहिए? You need to understand there is important reason why we are carrying out this research. Okay, so few of you must be thinking कि इससे तो बायो वेपन बन सकता है. Okay, बायो वेपन बन सकता है. few of you must be thinking about this thing कि इससे बायो वेपन बनेगा, ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा. Now important part is that if you are carrying out this research, okay, you can predict and prepare for future virus events. Okay, you can predict and prepare for future virus. Okay, भविष्य के अंदर कोई वायरस आएंगे तो आप पहले से ही उनको प्रिपेयर कर लोगे. ये इस एंगल को सोचते हुए रिसर्च की जाती है. सो इस रिसर्च को बंद कर देना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. यू कैन नॉट स्टॉप दिस पर्टिकुलर रिसर्च, ओके, बिकॉज इट हैज सम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमैनिटी. ये एंगल समझना पड़ेगा आपको, समझना है ना, कि बिल्कुल बंद नहीं करना है. अपना दिमाग एक बार सोच के देखो कि 50 ईयर डाउन द लाइंस इफ वी हैव सम वायरस, ओके, जो आने वाला है, जूनोटिक वायरस है, उसके लिए आपने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली एंड यू हैव द वैक्सीन विद यू, आपके पास पहले से ही वैक्सीन है. ओके, सो ये चीज आपको समझनी है, हम अपने फ्यूचर प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. सो दीज रिसर्च शुड डेफिनेटली कैरिड आउट. ओके, इन रिसर्चेस को आगे बढ़ने देना चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. सो देयर इज नथिंग मच, कुछ खास यहाँ पे बात नहीं है. ओके, सो ये एक तरीके की गड़बड़ चल रही है. नाउ चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड. देखो बात ऐसी है, 100 रुपए दिए जाएंगे. ओके, 100 रुपीज per children will be given, okay, who are getting benefit from midday meal scheme. midday meal से
बेनिफिट मिल रहा है जिनको, नियर अबाउट 11.5 करोड़ चिल्ड्रन, दे विल गेट 100 रुपीज, उनको 100 रुपए दिए जाएंगे. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, इज इट सफिशिएंट? ओके, इज इट सफिशिएंट? नो डाउट फॉर गवर्नमेंट इट विल द चार्जेस विल बी 1200 करोड़, सरकार के तो 1200 करोड़ लगेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, इज इट सफिशिएंट? 100 रुपए आप दे रहे हो, क्या होगा 100 रुपए में? ओके, 100 रुपए में क्या होगा? ये सारी समस्या है यहाँ पे, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना. सो प्रेजेंटली मिड डे मील स्कीम इफ यू पिक अप, ओके, सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग नियर अबाउट 11,000 करोड़ एवरी ईयर, 11,500 करोड़ रुपए लगता है सरकार का. ओके, सो एडिशनल 1200 करोड़ लगेगा, तो देर इज नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है. द क्वेश्चन इज दैट द स्केल इज वेरी लेस. ओके, इंडिया के अंदर जो है बहुत पैसा आपको खर्च करना होता है. सो बाय गिविंग द 100 रुपीज टू चिल्ड्रन यू कैन नॉट इंप्रूव देयर न्यूट्रिशन, उनकी न्यूट्रिशन जो है वो नहीं बढ़ेगा. एंड दिस 100 रुपीज इज टू बी गिवन ओनली वन टाइम पेमेंट, एक बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा बस. ओके, उसमें होगा क्या, क्या आप करोगे इसका? 100 रुपए पर डे नहीं, 100 रुपए बस एक बारी के लिए. ओके, इट इज नॉट अबाउट पर डे थिंग, द 100 रुपीज विल बी गिवन ओनली वंस, एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है ना. सो ये बात चल रही है. अब इससे क्या करोगे ये मुझे समझ में नहीं आता. ओके, सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1,000 करोड़ एड फॉर 3 स्टेट्स. नाउ यू टेल मी वन थिंग, अकेला वेस्ट बंगाल वाज डिमांडिंग समवेयर अराउंड 15,000 करोड़. द डैमेज, ओके, for alone West Bengal alone was 15,000 crore, and government is giving 1,000 crore aid for 3 states. This is the problem here. Okay, ये आपको समस्या देखने को मिल रही है. Now how are you going to help the states अगर आपके पास ही पैसा नहीं है तो? Okay, this is the problem here. ये प्रॉब्लम चल रही है. नाउ स्पेशल जीएसटी मीट ऑन स्टेट कंपनसेशन. नाउ दिस स्टेट कंपनसेशन रिलेटेड इशू इज स्टिल प्रिवेलिंग एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. Why it is so? So in 2017 GST was imposed. GST हमारे यहाँ पे लागू किया गया था. Okay, at that time there was one provision, एक provision दिया गया था. Okay, that for 5 years, okay, for 5 years means till 2022, okay, if there is shortfall in revenue, अगर किसी स्टेट को शॉर्टफॉल देखना पड़ रहा है, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू, ओके, अगर रेवेन्यू पूरा नहीं आ रहा जितना पहले आता था जीएसटी से, अगर कहीं शॉर्टफॉल है, देन सेंटर विल कंपनसेट. यूनियन जो है वो पैसा एक्स्ट्रा दे देगा, बट ओनली फॉर 5 years. ओनली फॉर 5 years द सेंटर विल कंपनसेट. नाउ कोरोना केम इन 2020, अर्ली 2020 और 2019, उसके बाद से हमारी हालत खराब है, एंड कोरोना इज गोइंग टू स्टे टिल 2022. ओके, 2022 तक कोरोना रहने वाला है. मींस लम सम यू हैव लॉस्ट 3 years, 3 साल आपके तो चले गए. ओके, रेवेन्यू इज नॉट पिकिंग अप फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज द बज़ वर्ड. नाउ ये चीज सामने आ रही है कि वी विल फॉर्म अ पैनल एंड idea will be explored that this 2022 compensation thing it will be extended till 2027. शायद और 5 साल के लिए इसे एक्सपैंड कर लिया जाए. सो यू हैव टू वेट एंड वॉच. ये चीज जो है हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना. यू हैव टू वेट एंड वॉच. ये अब 2027 के लिए एक्सपैंड होगा. ओके, बट द थिंग इज दैट कहां से आएगा पैसा? देयर इज स्टिल डाउट. ओके, डाउट इज स्टिल देयर whether again center will be having the funds to arrange this compensation, कि दोबारा उनके पास पैसा आएगा क्या सेंटर के पास? ये सारी समस्या अभी चल रही है. सो दिस इज द क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन. ओके, इस देश में चीजें आसान नहीं होती. विल मूव टू वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. नाउ जयशंकर मीट्स यूएस, एनएसए एंड प्राइवेट सेक्टर. Now you need to understand this particular thing. Okay, this particular meet which they carried out, and I have drawn this particular mind map for you. Okay, so the points that are फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस्ड विद देयर काउंटरपार्ट्स, बाकी लोगों के साथ जो उन्होंने डिस्कस किया है, यू विल बी पुटिंग अप द सेम पॉइंट्स इन योर आंसर. ओके, सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन इंडिया यूएस, ठीक है ना, इंडिया यूएस, देयर कैन बी क्वेश्चन इन योर जीएस पेपर 2. ओके, इंटरनेशनल रिलेशन. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन यू विल बी पुटिंग दीज पॉइंट्स एज इट इज.
ये पॉइंट आप एज इट इज इसके अंदर लिखोगे, ओके, बिकॉज द डिस्कशन दैट वी कैरिड आउट राइट नाउ वो इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड थी. सो इंडो पैसिफिक वॉज डिस्कस्ड, ग्लोबल इश्यूज वर डिस्कस्ड. इन इंडो पैसिफिक स्पेसिफिकली चाइना इशू इज डिस्कस्ड, ओके, assertive China, what is the role for Quad, what is the future of Quad, Quad का फ्यूचर क्या होगा, ग्लोबल इश्यूज, these things were discussed, okay. Then technology, trade, business, these are at the core of our strategic partnership. तो हम अगर ये बोलते हैं यूएस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो आपको ट्रेड भी आगे बढ़ाना है. यू नीड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको चाहिए. बिजनेस आपको चाहिए, यू नीड एफडीआई, ओके. तो आपको यू हैव टू आस्क यूनाइटेड स्टेट्स दैट व्हाट इश्यूज योर companies are facing in India. We will remove those problems. We will facilitate platform for you. Okay. This is what it is about. Then Afghanistan peace process. What will be the future of Afghanistan? Do they have any plan? US is now withdrawing from Afghanistan. कुछ प्लान है आपका? तालिबान कितना अकोमोडेट कर पाएगा तालिबान, ठीक है ना, डेमोक्रेसी को. देन कोविड चैलेंज एंड द आइडिया ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप. US has the money, US has the vaccine, means they have the patent. हमारे पास कैपेसिटी है, we have the pharmaceutical units here, okay. So if we and United States, we are joining our hands, we both can provide vaccine for the whole world. पूरी दुनिया के लिए हम वैक्सीन बना सकते हैं. आइडिया ऑफ क्वाड वैक्सीन, ओके, क्वाड वैक्सीन जो है वो हम बना सकते हैं, which you can give it to the African nations, okay. अफ्रीका जो है उनको वैक्सीन आप दे सकते हो. Now Biden administration would support India South Africa initiative at WTO. This is the latest thing which is going on. Biden has given support to India South Africa demand that waiver should be given, okay, patent waiver should be given at WTO level ताकि कोर्ट में केसेस ना हो सकें. This is what India and South Africa is demanding. Okay. Then climate change cooperation. So without the help of India, the world cannot achieve the climate change challenges. Okay, climate change targets. जो आपके climate change जो है पेरिस डील के जो टारगेट्स हैं, विदाउट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया द वर्ल्ड कैन नॉट अचीव दोस, ओके, वो नहीं उसे अचीव कर सकते हैं. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल टू पीपल टाइज. We have to promote people to people ties. 500 million relief has been provided by US to India in terms of oxygen cylinder, vaccine and other support. Okay. So these are the points that you will be mentioning in your answer. अपने आंसर में इन चीजों को आप मेंशन करना. Okay. तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है. So ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं अपने आंसर के अंदर. Okay. So we will be mentioning about it now. As India watches keenly, Sri Lanka seeks FDI in the port city. Okay. So now again, like they are playing this. पोर्ट सिटी के अंदर उनको एफडीआई चाहिए. ओके. द आइडिया इज दैट देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंट वेंचर, पूरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा काम. सो यू हैव अ राइवलरी. सो हियर वी हैव इंडिया एंड अदर इन्वेस्टर इज चाइना. बोथ वांट टू हैव, ओके, बोथ वांट टू हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस. अपना अपना इन्फ्लुएंस वो चाहते हैं. नाउ चाइना इज यूजिंग द चेकबुक डिप्लोमेसी. ओके, चाइना इज यूजिंग द checkbook diplomacy. What is this checkbook diplomacy? Means they have lot of foreign reserve. उनके पास foreign reserve बहुत है, पैसा बहुत है, डॉलर बहुत है. So they wanted to invest, और वो जो है श्रीलंका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. The thing is that we have to counter China. Okay, we have to counter China, and you have to counter China at each and every step. हर स्टेप पे आपको काउंटर करना पड़ेगा. जहां जहां पे भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है आपको मैच करना पड़ेगा. ओके, ये एंगल समझना जरूरी है. तो अगर बांग्लादेश के अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, अगेन इंडिया को प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा. श्रीलंका में कहीं कुछ हो रहा है तो हमें इसको भी मैच करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द गेम विच इज गोइंग ऑन. नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां पे फ्रांस एंड द रवांडन जेनोसाइड. ओके, तो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था in your 1994. Now this is the particular point here. Okay, so how France is responsible? France के अंदर शोर क्यों मच रहा है? फ्रांस के जो लीडर्स हैं, why are they feeling sorry about it? वो लोग सॉरी क्यों फील कर रहे हैं? Okay, so this is the Rwanda as you see in your map. Now Rwanda is, you know, bordered by Uganda, Democratic Republic of Congo, Burundi is there and Tanzania is there. Okay, so you should have the map based idea.
नाउ इन रवांडा यू हैव मेजर टू कम्युनिटीज, ओके, सो दो कम्युनिटीज हैं, हुटू एंड टुट्सी, ओके, हुतू एंड टुट्सी, okay, tutsi are there and hutu are there. Now genocide has been carried out because of this ethnic conflict, okay, because of this ethnic conflict the genocide was carried out, और यही हुआ था 1994 में, because of this ethnic conflict. Now President Macron, okay, he promised that a new beginning with Rwanda was made and set up a 15-member expert committee. So this particular committee was formed to find out whether France had any role in that genocide, कि फ्रांस का रोल क्या था उस जेनोसाइड के अंदर, 1994 में वो जेनोसाइड हुआ था, okay, what was the role of French administration at that time, this idea was explored, इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया गया था. Now the thing is that ये आइडिया आया लेकिन बात कुछ आगे बनी नहीं, ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज हुटूज एंड माइनॉरिटी इज टुट्सी. दे हैव अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप, ओके, दे हैड अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप. नाउ बिफोर द independence, Germany and Belgium, these were the colonial rulers of the Rwandan region. So colonialists ruled Rwanda through the Tutsi minority. At that time Tutsi monarchy was used, but Tutsi are in minority, population wise जो है ये minority हैं, okay, लेकिन उनको वहां पे राजा बना रखा था. And Tutsi people, they had better education, better employment opportunities, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ये सब प्रॉब्लम थी. अब हुटूज, ओके, हुटू ट्राइब, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे. इन 1959 there was a violent riots. Hutus carried out this riot and near about 20,000 Tutsi were killed, okay, इनको मारा गया था वहां पे. So at that time violence was going on, okay, so Belgian authorities they handed over the power to Hutus elite. तो Hutus elite जो थे उनको पावर दे दी गई थी, ठीक है ना. So in 1961 Hutu leader Kyaibanda, he declared Rwanda as autonomous republic, okay, autonomous republic जो है इसको डिक्लेयर कर दिया था. and Kyaibanda became Rwanda's first elected president. ये हुटू लीडर था, हुटू. and while the Tutsi, okay, Tutsi tribe, they formed an insurgent groups, उन्होंने आर्म्ड इंसर्जेंसी के ग्रुप्स बना लिए, ओके, एंड द फाइट स्टार्टेड देयर. उसके बाद सिविल वॉर टाइप जो है सिचुएशन चलती रही, एक दूसरे के अगेंस्ट वो लड़ते रहे. सिंस देन द रवांडा हैड बीन कंट्रोल्ड बाय हुटूज, ओके, हुटूज जो है वो चलता रहा until their genocidal regime was toppled by Rwandan Patriotic Front, okay. 1994 के अंदर there was Rwandan Patriotic Front, they toppled the Hutus government, उनको हराया गया, ओके. और बात ऐसी है कि उनके अंडर ही ये जेनोसाइड चल रहा था. नाउ इन 1994 देयर वाज वन इवेंट, Falcon 50 jet carrying हैबियर मामा, ओके, एंड हिज ब्रूंडी काउंटर पार्ट. तो दोनों के जो लीडर्स थे दे वर किल्ड बिकॉज दैट प्लेन वॉज शॉट डाउन. उस प्लेन को गिरा दिया गया था, ओके. सो हुटू लेड गवर्नमेंट ब्लेम्ड द आरपीएफ फॉर दिस अटैक. इस अटैक के लिए आरपीएफ को जो है इन्होंने जिम्मेदारी दी. सो मिलिट्रीज एंड द हुटू मिलिशियाज, मेनली दिस पर्टिकुलर रीजन, दे अनलिश्ड द वायलेंस अगेंस्ट टुट्सीज, ओके. तो तब जो है मिलिट्री स्टार्टेड अ वायलेंस अगेंस्ट टुट्सी ट्राइब. तो टुट्सीज के अगेंस्ट जो है वो वायलेंस स्टार्ट हुआ एंड दिस वाज द जिनोसाइड. ये जिनोसाइड का एंगल है, ओके. सो व्हाट्स द फ्रेंच रोल? फ्रेंच रोल वाज दैट फ्रांस डिडंट डू एनीथिंग, ओके. सो दिस एक्सपर्ट कमेटी व्हिच वाज फॉर्म्ड, सो एक्सपर्ट कमेटी, okay, found out that when this genocide was going on, France didn't do anything. उन्होंने कुछ भी नहीं किया, okay. And why this particular point has been raised? See, you need to understand these European nations, okay. European nations are very sensitive about human rights. जहां पे human rights की बात आती है तो यूरोपियन नेशंस जो हैं उनका दिल में दर्द हो जाता है, ठीक है ना. दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द ह्यूमन राइट्स. बट हियर
द गवर्नमेंट ऑफ रवांडा कैरिड आउट दिस जेनोसाइड, टुटसी के अगेंस्ट ये जेनोसाइड चलता रहा और इन्होंने कुछ नहीं किया. सो हुटू गवर्नमेंट को फ्रांस एट दैट टाइम, फ्रांस यूज टू बैक हुटू गवर्नमेंट. ओके, इनको सपोर्ट मिलती थी, ठीक है ना, हुटू गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलती थी. ओके, सो हुटूज एंड तुत्सीज, टू डिफरेंट कम्युनिटीज आर देयर इन रवांडा. दो अलग अलग कम्युनिटी हैं. हुटूज जो है दे आर इन मेजोरिटी. ओके, हुटूज मेजोरिटी में है. एंड एट दैट टाइम देर वॉज अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, मीन्स हुट्टू वर इन मेजोरिटी. हुट्टू की सरकार, एक टाइम हुट्टू कम्युनिटी की सरकार वहां पे चल रही थी. ओके, एंड जेनोसाइड वॉज कैरिड आउट अगेंस्ट टुटसीज. ओके, सो टुटसीज और मॉडरेट हुटूज जो है उनके अगेंस्ट ये जेनोसाइड किया गया था. इस टाइप की सिचुएशन थी. एंड फ्रेंच गवर्नमेंट डिडंट डू एनीथिंग, फ्रेंच गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. ये पूरी कहानी है इस रीजन की. ओके, ये पूरी कहानी है, ठीक है ना. So this was the point here, okay, that in Rwanda you have two ethnic groups, one is Tutsi, okay, and one is Hutus. So basically in the broad term you can say that the violence was carried out, okay, violence was carried out against Tutsis because Tutsis are in minority. Tutsi आपकी minority में है, ठीक है ना. So ये minority में है और इनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ था, ये जेनोसाइड था. नाउ स्केल ऑफ जेनोसाइड वाज ह्यूज. ओके, बहुत बड़ा स्केल था. नियर अबाउट 8 लाख पीपल डाइड. 8 लाख पीपल डाइड. देयर वर मास रेप्स. ओके, ये सिचुएशन थी वहां पे. 8 लाख लोग मारे गए थे. ओके, मॉडरेट हुटूज, मॉडरेट हुटूज मतलब जो रेडिकल ना हो, थोड़े समझदार, ठीक है ना. मॉडरेट हुटूज मतलब वो जो रेडिकल ना हो, थोड़े समझदार. ओके, ये एंगल बना था. तो ये सारी बात थी. ओके, ये डिबेट चल रही थी. नाउ विल मूव अहेड. कोविड टोल ऑन इकोनॉमी डीपन्स. ओके, दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग आउट. डेफिनेटली इकोनॉमी इज नॉट पिकिंग अप. Okay, so you need to understand after first wave. Okay, there was first wave. So after first wave economy bounced back. Okay, economy bounced back, everything was going fine, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. Then came your second wave. उसके बाद आ गई आपकी second wave. Okay, again economy is down now, but experts are saying that okay it will again bounce back. Again it will bounce back. Okay, दोबारा जो है ये bounce back होगा. But you need, they are telling this that we have to use this time. Okay, ये टाइम हमें यूज करना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर थर्ड वेव. थर्ड वेव आने से पहले आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है. दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग आउट. ओके, ये चीज चल रही है दैट डोंट वेस्ट टाइम, डोंट सिट एट योर होम कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस. यू शुड प्रिपेयर फॉर इट. इसके लिए आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना. वो चीज इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की है. ओके, so this is what they have pointed out. So now this was it. Okay, ये था आज का हमारा सेशन. Okay, this was our session. So today we are not going to cover the ethics question. Okay, so ethics question we are not covering. So I'll address your doubts. आपके doubts को जो है अभी हम देखते हैं क्या doubts हैं आपके. Okay, मतलब फ्रांस ने कुछ नहीं किया जेनोसाइड रोकने के लिए, यही फ्रांस की गलती है. एब्सोल्युटली राइट. Does the conflict is still on? They are sorted now. So conflict तो चलता रहता है. See, जो civil war होता है ना वो कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता. So there is angle of ethnic conflict. Okay. So ethnic conflict can reappear anytime. और ये temporary peace है, ठीक है ना. This is the temporary peace. Temporary peace चलता है और temporary peace जो है वो temporary ही रहता है. Okay. So long term solution इसका ढूंढना चाहिए, ठीक है ना. So sir, but why Rwandan genocide is in news now? Because French president, okay, he said sorry for it. फ्रांस के लीडर ने सॉरी बोल दिया. okay, because France felt sorry, ठीक है ना. That's why it was in news. फ्रांस ने सॉरी बोल दिया कि हमने कुछ नहीं किया. That at that time we didn't do anything. Okay, we didn't do anything. तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो बात ऐसी है, आपको ऐसा लग रहा होगा फ्रांस का क्या कसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया तो फ्रांस की मर्जी. यू माइट बी थिंकिंग इन दैट वे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, नाउ फ्रांस कंसिडर इटसेल्फ टू बी अ रेस्पॉन्सिबल पावर. ओके, सो जो ये रेस्पॉन्सिबल पावर होती हैं आप तभी रेस्पॉन्सिबल माने जाओगे जब आपका कंडक्ट वैसा होगा. सो आइडियली
यूरोपियन नेशंस दे आर सो सेंसिटिव अबाउट द ह्यूमन राइट्स, और यहाँ पे पीपल वर मैसेकर्ड, देयर वर रेप्स, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके, आप कुछ ना करो, यू आर नॉट यूजिंग योर इन्फ्लुएंस. जो भी आपका छोटा मोटा इन्फ्लुएंस है, एटलीस्ट यू शुड हैव यूज्ड दैट, उसको यूज करना चाहिए था ना. ये चीज आपको समझनी है. ओके, ये चीज आपको समझनी है. सो इफ यू आर सो सीरियस अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो वो हर जगह होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि केस बाय केस बेसिस पे आप जो है ह्यूमन राइट्स की बात करो. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर डिफेंडिंग द ह्यूमन राइट्स एट केस बाय केस बेसिस. भाई जहां आपका इंटरेस्ट सूट करता है आप तो ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा लो, जहां इंटरेस्ट नहीं सूट करता वहां ह्यूमन राइट्स की बात ना करो. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. सो ये बात इन्होंने बोली है. ओके, सो in the other words, Indian media shows that goodness of the government. Okay, so Priya Lamba, no, Indian media doesn't show everything, they just show whatever matter government want public to know. Okay, so ये गेम चलता रहता है. मीडिया इज कंट्रोल्ड, सैबोटाज्ड. ओके, जो हम बोलते थे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ गया है, हालत टाइट है उसकी. सर अगर तालिबान गवर्नमेंट में आया तो करप्शन वायलेंस बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले तालिबान वहाँ पे सरकार बना चुका है, ठीक है ना. यस सर, अगर पार्टनरशिप ही तो बेनिफिट लेना है चाहिए. ओके, सो दे शुड प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूनियन ऑफ द डोनेशन एंड फंड्स रेज्ड बाय द सेलिब्रिटीज फॉर द पीपल. एब्सोल्युटली राइट, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड. एट द एंड ऑफ द डे पीपल शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इधर का उधर हो रहा है जो. ओके, so 100 रुपये sufficient नहीं है, you have told me. The thing is, whenever dowry is demanded, it is the crime, maybe pre or post marriage, but if dowry deaths occur, the suspect should be strongly punished and socially demanding dowry should be decreased. Okay, so yes, we all look, aspire for the ideal solution. Okay, so देखो बात ऐसी है, dowry is existing. Okay, dowry is existing, we all know that we लुक फॉर द आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन जो है उसके पीछे हम रहते हैं, एंड डाउरी शुड एंड. ओके, इट शुड एंड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पाथ इज स्टिल लॉन्ग. ओके, यू हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना. सो यू आर मेकिंग अ लॉ, सो आई एम टेलिंग यू दिस लॉ इज ऑलवेज अ टेल एंड. ओके, बी व्हेन देयर इज अ डेथ, जब डेथ हो जाएगी, कोई मर जाएगा, then law will come into picture. Okay, when there is a death, then law will come into picture. Law is always a tail end. So what should be done? So before the death itself you have to prepare, in the sense आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो जुडिशियल सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा. ओके, you have to make sure that your judicial system is handling the cases on a timely basis. टाइम पे जजमेंट आ जाए, देन ओनली इट विल बी एबल टू क्रिएट सम डेटरेंस. तभी तो आपका डेटरेंस होगा. अगर आपका केस 15 साल तक चल रहा है, द केस इज गोइंग ऑन फॉर 15 ईयर्स, कुछ भी नहीं होने वाला है, वो डेटरेंस नहीं होगा फिर उसके बाद. ओके, डेटरेंस उसके बाद नहीं होगा. ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस सून. जल्दी अभी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आई विल बी टेकिंग अप द पबैड. सो ये आपको समझना है, ठीक है ना. तो ये एंगल समझिए, कानून तो टेल एंड है, जुडिशियल सिस्टम आपको इंप्रूव करना है. यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, अवेयरनेस जनरेट करना है दैट डोंट आस्क फॉर डॉरीज. सो यूपीएससी सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, दे आर डिमांडिंग डाउरी, मीन्स द कोर लीडरशिप, important leadership of this country, people look up to them, and if they are not moving away from dowry, तो कैसे आप dowry से दूर करोगे, ठीक है. you are writing an essay in your यूपीएससी एग्जाम कि हमें डाउरी को हटाना है, और उसके बाद ऑफिसर बन के डाउरी चल रही होती है, तो फिर मतलब सिस्टम ठीक नहीं है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये चीज थोड़ी सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना. सो डज इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट श्रीलंकन तमिल्स? यस, वी डू सपोर्ट देम. ओके, हमने कई बार सपोर्ट किया, बट इट्स अ टाइट रोप टू वॉक. ओके, सो श्रीलंका का जो इशू है, इट्स अ टाइट रोप टू वॉक, ठीक है ना. टाइट रोप आपको वॉक करना पड़ता है, ठीक है. ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ता है. सो प्रिया लामा सर, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमी. यस, एवरीथिंग शुड. ओके,
Sir, adultery and divorce rates after 8 to 9 years of marriage is increasing. Then dowry death is possible even after. Yes. Okay, sir. Please give a brief summary about the Lakshadweep current issue. I have already explained it. पूरा मैंने आपको बता दिया है. Okay. Sir, I think government should discuss the whole issue with bureaucracy to get some expert advice from the proper agenda and provision to tackle the problem of COVID-19. Experts are already there. Okay, don't worry about it. Experts तो हमारे यहाँ पे हैं और experts अपनी राय दे भी रहे हैं. ठीक है ना. अंकित गुप्ता सर, we have single citizenship but we also have a state domicile. So it can say that domicile is a colorful legislation. No, it is not like that. Domicile different चीज़ों के लिए है. Okay, domicile अलग पर्पस के लिए होता है. ठीक है ना, वो सिटीजनशिप के लिए नहीं होता. ओके, डोमिसाइल डजंट गिव यू राइट. डोमिसाइल आपको राइट नहीं देता है. सिटीजनशिप विल गिव यू राइट. ओके, सिटीजनशिप विल प्रोवाइड यू राइट. यू हैव अ डोमिसाइल, इट डजंट गिव यू फंडामेंटल राइट. आपको फंडामेंटल राइट डोमिसाइल होने से नहीं मिलेगा. फंडामेंटल राइट आपका सिटीजनशिप होने से मिलेगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मोनोपोली मीन्स डोमिनेंस ऑफ वन. ऑटोक्रेटिक रेजिम मीन्स अपनी मन की करने वाले. ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. आप जो है अपने मन की कर रहे हो. जस्ट बिकॉज यू हैव द मेजोरिटी इन योर गवर्नमेंट, आप अपने मन की कर रहे हो. ओके, सो सर, आई हैव रिसेंटली पास 12th एग्जाम. ओके, शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. यू कैन ज्वाइन आवर एनसीईआरटी कोर्स. ओके, आप हमारा एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. वी रन एनसीईआरटी कोर्स ऑल्सो. ओके, एंड दैट्स द बेस मेकिंग एक्टिविटी. ओके, दैट्स द बेस मेकिंग एक्टिविटी. सो यू कैन ज्वाइन आवर एनसीईआरटी कोर्स. हम उसमें बेस जो है वो आपका बना देते हैं. वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम देयर. कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट कम फोर फ्रंट टू हैव कोविड प्लान. ओके, डाटा इंपॉर्टेंट है. पेटेंट इज ओनली विल बी बिग स्टेप. येस, इट विल बी अ बिग स्टेप. ओके, सोशल अवेयरनेस टू. येस, of course we have to do social awareness. Yes, main point of vaccine diplomacy. Okay sir, main points on vaccine diplomacy. So you are asking that what we carried out the vaccine diplomacy thing. Okay, so vaccine diplomacy means what? You need to understand. तो इसको समझना जरूरी है. क्यों इसको समझना जरूरी है? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी, वी कैरिड आउट वैक्सीन मैत्री. ठीक है ना, वैक्सीन मैत्री हमने स्टार्ट किया. ओके, एंड वी कमिटेड. हमने क्या कमिट किया कि we will provide vaccines and 90 to 100 countries they placed orders. इन्होंने हमारी फर्म को ऑर्डर प्लेस किए कि इंडिया जो है इनको वैक्सीन देगा. अब वैक्सीन की देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज. ओके, देयर इज ग्लोबल शॉर्टेज एंड दीज कंट्रीज दे कैन नॉट अफोर्ड द वेस्टर्न वैक्सीन. जो वेस्ट की वैक्सीन है वो बहुत महंगी है. तो इंडिया सस्ती वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है, अफोर्डेबल वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है ना. So you need to understand here what happened because of this second wave. Okay, because of this second wave, India was not able to handle its domestic requirement. तो domestic जो requirement है उसको ही हम handle नहीं कर पाए. Okay, domestically इतनी बड़ी crisis हो गई, आप कैसे जो है committed order को fulfill करोगे? जब आप डोमेस्टिक पॉपुलेशन को तो वैक्सीन प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल योर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन? ओके, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन कैसे फुलफिल करोगे? नाउ दिस इज द क्राइसिस हियर. ये क्राइसिस है एंड इट रिड्यूस्ड. ओके, इट रिड्यूस्ड इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग. ओके, इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल लीडर हम बनना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो गया. Okay, because now countries will think this country, this is not able to handle its own problem. अपनी समस्याओं को डील नहीं कर पा रहा है और हमारी क्या हेल्प करेगा? ठीक है ना. This country is not able to handle its own problems, तो हमारी हेल्प क्या करने वाला है? ठीक है ना, हमारी हेल्प क्या होने वाली है इससे? सो इंडिया की इमेज कहीं ना कहीं वहां डाउन हुई है और यही प्रॉब्लम है. अब जिसे बोलते हैं ना मौके पे चौका मारना. देखो, बांग्लादेश पहले इंडिया से वैक्सीन ले रहा था. प्रेजेंटली चाइना ऑफर्ड द वैक्सीन, वो अब चाइना के पास चला गया है. श्रीलंका पहले इंडिया से वैक्सीन ले रहा था, वो चाइना के पास चला गया है. मैनी अफ्रीकन नेशंस दे वर लुकिंग अप टू इंडिया, नाउ एवरीवन इज लुकिंग अप टू चाइना. ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है ना. सो इंडिया इज ब्लेम्ड फॉर वन थिंग, दैट वी कमिट बट वी आर पुअर एट डिलीवरी. ओके, वी कमिट द प्रोजेक्ट बट वी आर पुअर एट डिलीवरी. हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते. ओके, हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं. ये हमारी समस्या है.
ठीक है ना, ये हमारी समस्या है, इससे जो है हमारी बेइज्जती हो जाती है। ओके, सो सिर्फ यहाँ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर ये समस्या रही है। ओके, सो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये एंगल आपको समझना पड़ेगा। सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर डाउट्स। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज मीडिया ट्रायल? ओके, सो समवन इज आस्किंग व्हाट इज मीडिया ट्रायल। देखो एक बात होती है, सो इन स्टूडियो, ओके, मीडिया जो डिस्कशन करता है, मीडिया कैरी आउट द डिस्कशन, ओके, एंड दैट डिस्कशन without looking into facts, okay, without looking into facts, just to make TRP, just to gain TRP, tally rating points, okay, they carry out the discussion, discussion जो है वो किया जाता है। अब इस केस में होता क्या है, sides are taken, okay, sides ली जाती हैं, एंड इट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन, और पब्लिक परसेप्शन को ओके टच किया जाता है, पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है। सो मीडिया ट्रायल होगा, एंड मीडिया ट्रायल इस तरीके से होगा कि रिच आर इवेडिंग टैक्सेस, ओके, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई जाएंगी, कैची वर्ड्स, ओके, कैची वर्ड्स यूज होंगे, हेडलाइन होगी लाइक rich are evading taxes, okay. Now you tell me one thing, do all rich are evading taxes? क्या सभी के सभी रिच जो है वो टैक्स इवेड कर रहे हैं? ओके, इस टाइप का मीडिया परसेप्शन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। देखो आप एक बात समझो, कोई गुनेगार है कि नहीं, कोई कल्प्रिट है कि नहीं, कोई कन्विक्ट है कि नहीं, ओके, कन्विक्ट कौन है ये जुडिशरी डिसाइड करती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होता है, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ लॉ में ओके ये चीज डिसाइड होगा कि कौन कन्विक्ट है, मीडिया नहीं डिसाइड कर सकता है। ओके, बट होता क्या है, पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन जाता है। नाउ पब्लिक परसेप्शन इज मेड अराउंड दीज लाइंस। अब वो पब्लिक परसेप्शन बन गया, मतलब जज अपना जो जजमेंट सुनाएगा, जज जो जजमेंट सुनाएगा, जज विल कम अंडर प्रेशर, ओके, जज हिमसेल्फ विल कम अंडर प्रेशर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल मलाइन द इमेज ऑफ अ पर्सन, ओके, इट विल मलाइन ओके द इमेज ऑफ अ पर्सन, उस आदमी की इमेज बिल्कुल मलाइन कर दी जाती है। सेम इज द केस विद रिहा चक्रवर्ती, ओके, रिहा चक्रवर्ती के केस में ऐसा ही हुआ था। Now Sushant Singh committed a suicide, but media put whole blame on Riya Chakraborty कि रिया चक्रवर्ती ने ही वो किया है। अरे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट ने डिसाइड करना है, मीडिया थोड़ी ना डिसाइड करता है। सो इन योर जूरिस्प्रूडेंस, ओके, जूरिस्प्रूडेंस यू हैव वन कंसेप्ट, जूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ओके, innocent until proven guilty means till the time you are proven guilty in the court of law, the person is considered as innocent, okay. so jurisprudence का ये एंगल है, ठीक है ना, innocent until proven guilty, जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में, घर में कोई अपनी गिल्टी गुल्टी नहीं होता, ठीक है ना, देयर इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, उसके अंडर जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो, टिल द टाइम यू आर इनोसेंट, ओके, आप इनोसेंट माने जाते हो। ये जूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। नाउ व्हाट डज दिस मीडिया हाउसेज आर डूइंग, जस्ट बिकॉज आपको टीआरपी मिलती है, आप किसी की इमेज को मलाइन कर देते हो, ओके, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये है मीडिया ट्रायल, दिस इज द मीडिया ट्रायल, ओके, ये मीडिया ट्रायल है, ये गड़बड़ हो रही है यहां पे, ठीक है ना। सो ये आपको समझना है। नाउ यू आर आस्किंग प्रोडक्ट एंड पेटेंट, ओके, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस
ओके, सो प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, ठीक है, प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट। अब दिस इज योर मिल्क शेक, ओके, दिस इज द मिल्क शेक, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस मिल्क शेक इज द प्रोडक्ट। नाउ इफ I'll गिव प्रोडक्ट पेटेंट, अगर मैंने प्रोडक्ट पेटेंट दे दिया, सपोज वरुण के पास ये प्रोडक्ट पेटेंट है, सो मेरे अलावा नो वन विल एवर बी एबल टू मेक मिल्क शेक, ओके, नो वन एल्स विल बी एबल टू मेक मिल्क शेक, कोई और जो है मिल्क शेक नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस मिल्क शेक का मेरा पेटेंट है, मैंने मिल्क शेक बनाया है, कोई और इसके किसी और के पास इसका पेटेंट नहीं है, ओके। नाउ देयर इज अ प्रोसेस पेटेंट। अब प्रोसेसेस अलग अलग हो सकती हैं, यू कैन यूज काउज मिल्क, आप काउ मिल्क यूज कर सकते हो, आप बफेलो मिल्क यूज कर सकते हो, यू कैन यूज आलमंड मिल्क, आप वो यूज कर सकते हो, यू कैन यूज यू कैन यूज सिरप ऑल्सो, आप सिरप यूज कर सकते हो, या आप खुद ब खुद जाके उसके अंदर जो है सपोज आलमंड तोड़ के डाल सकते हो, बादाम तोड़ के डाल सकते हो। अब मिल्क शेक बनाने की अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ओके। अगर मैंने काउ मिल्क का पेटेंट दिया तो वो काउ मिल्क से जो प्रोसेस है ना, सिर्फ वो मैं ही यूज कर पाऊंगा। अगर मैंने बफेलो मिल्क से बनाने का पेटेंट दिया तो बफेलो मिल्क का जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ बी पर्सन ही यूज कर पाएगा। अब ये बी पर्सन बफेलो मिल्क यूज करता है, ए पर्सन काउ मिल्क यूज करता है, कोई जो है सी पर्सन आलमंड मिल्क यूज करता है। तो आपका मिल्क शेक बनाने की अलग अलग प्रोसेस हो गई, उन प्रोसेस को पेटेंट दिया गया है। इंडिया ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट है। इन इंडिया वी हैव दिस अरेंजमेंट कि हमारे यहां पे प्रोसेस पेटेंट दिया जाता है। मतलब ये एक मेडिसिन है, ओके, इस मेडिसिन के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स, मेडिसिन के अंदर सॉल्ट ही होते हैं ना अलग अलग, ओके, तो अलग अलग सॉल्ट को अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके भी मेडिसिन बन सकती है। एक मैं कह दूं कि सिर्फ मेडिसिन पे ही पेटेंट है, ओके, तो आप कोई भी सॉल्ट यूज कर लो, कैसे भी मेथड यूज कर लो, तो आप कभी वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो दिस इज द एंगल हियर। तो हमारे यहां पे क्या अरेंजमेंट होता है, यू कैन यूज डिफरेंट सॉल्ट, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट यूज करके, थोड़ा जुगाड़ करके आप जो है उस मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन बना सकते हो, ठीक है ना, जेनेरिक वर्जन, ओके, वो इंडियन पेटेंट अलाउ करता है, वो हमारे यहां पे अलाउड है। ये एंगल है प्रोडक्ट और पेटेंट प्रोसेस का। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ योर प्रोडक्ट एंड पेटेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट, ओके। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। So what are your views about class 12th exams? Exams should be conducted, okay? Exams तो होने चाहिए, ठीक है ना। So एक फेमस लाइन है जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ओके, यूपीएससी जीएस पेपर 4 में देयर वाज वन स्टेटमेंट, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, ओके, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ है यूपीएससी ने, ओके, एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ओके, ये सवाल इन्होंने पूछा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा, ओके, इफ वी आर नॉट हैविंग एनी एग्जाम्स, सो स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू नो देयर शॉर्टफॉल्स, जो कमियां हैं, ओके, शॉर्टफॉल्स वो पता ही नहीं लगेंगी। जब आपको आपकी कमियां नहीं पता लगेंगी तो आप इंप्रूव नहीं करोगे, दे विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव, वो इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये कहानी समझनी है, ठीक है, ये पूरी कहानी समझनी है। सो नए बैच आई गेस अनाउंस हो चुके हैं, ओके, यू कैन ऑलरेडी यू कैन कॉल राज सर, आप राज सर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो टू एंक्वायर, ओके, सो ही विल हिमसेल्फ गिव यू अ रिप्लाई, यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू हिम, ओके। प्रज्ञा, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस, नए बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एनसीईआरटी बैच भी जो है स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन ज्वाइन द एनसीईआरटी बैच, आप एनसीईआरटी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके।
So I'll give you the detail. So tomorrow I'll give you the detail when we are going to start new batches. Okay. So NCERT by batch also I am going to tell you how we are going to start. Means it will be in line. Already few batches have been started. थोड़े बहुत NCERT batches जो हैं already यहाँ पे start भी हो चुके हैं और कुछ और भी अभी start होंगे. Okay. So very soon we will be starting those NCERT batch. So I'll give you that information tomorrow. So पूरा डिटेल मैं आपको देता हूँ कल. ठीक है ना. So this was our session guys. Please do give me a like if it is benefiting you. अगर आपका थोड़ा बहुत benefit हो रहा है तो आप इसको like तो कर ही सकते हो. और दूसरी चीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके. सो आई गेस आई हैव एड्रेस्ड योर डाउट्स. आपके डाउट्स मैंने सारे यहाँ पे एड्रेस कर दिए हैं. सो थैंक यू वेरी मच. सो आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू. ओके. सो टुमारो वी विल बी हैविंग दिस सेशन. सो हम लोग जो है 24/7 चलते हैं. हमारे यहाँ पे सेशन संडेज को भी किए जाते हैं. ओके. सो संडे को भी हमारी छुट्टी नहीं होती है. संडे को भी हम लोग आते हैं. ठीक है ना. सो यू कैन कनेक्ट विद मी टुमारो. कल आप जुड़ सकते हो. सो टेलीग्राम ग्रुप जो है, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप विद द नेम ऑफ मटेरियल बाय राज मल्होत्रा IAS. ओके. सो राज मल्होत्रा IAS के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. यू कैन ज्वाइन इट. ठीक है ना. और प्लीज इफ एनीवन हैज द डिटेल ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप दे कैन शेयर इट इन द चैट सेक्शन. तो आप में से किसी के पास अगर कोई डिटेल है तो आप उसको शेयर कर सकते हो चैट सेक्शन के अंदर. अभी प्रज्ञा की हेल्प कीजिए. ओके. सो Raj Malhotra IAS, this is the name of the Telegram channel. You can join it where you can download the PDF and there are other materials that we put in that particular channel. Okay. सो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए. संडे को भी हम जो है जरूर आते हैं. ओके. सो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू वेरी मच. ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.